مكية غير رواني خلاص. वीडियो बनो الحمدللہ رب تعالیٰ نے ہمیں قبل سور غار سور کی جات نصیب فرما. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے یہ دعا کریں کہ اللہ بار بار آنا نصیب فرما. ایسے مقدس مقامات کی اور مکہ اور مدینہ کی باادب حاضری نصیب فرما. گپ شپ سے بہتر ہے اپنے دل میں درود و پاک پڑھیں, کثرت سے استغفار کریں. یہ وقت بڑا قیمتی ہے اور بڑے جلدی سے یہ وقت گزر رہا ہے. وطن عزیز جائیں گے تو آپس میں گپ شپ کریں. یہ گھڑیاں زندگی میں پھر یہ موقع پھر اس راستے کے مسافر بن سکیں یا نہ بن سکیں, کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے. اور یہاں نہ کوئی اپنی مرضی سے آ سکتا ہے, نہ کوئی پیسے کی وجہ سے آ سکتا ہے, نہ کوئی کسی عہدے کی وجہ سے, نہ کوئی کسی وزارت کی وجہ سے. تو یہاں بلائے جاتے ہیں تو ان بلائے ہوئے لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہے. روایات میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ کو کسی بندے کی کوئی ادا پسند آ جائے, کوئی کام پسند آ جائے تو رب تعالیٰ اسے اپنی طرف مائل کرتے ہیں, اسے اپنے در پہ بلا لیتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ رب تعالیٰ کسی بندے کو 10 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھیں, اسے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. اور کسی بندے کو 100 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیں تو اسے پسند کرتے ہیں, اپنے در پہ بلا لیتے ہیں. تو ہم وہ مخصوص سے لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے 100 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھا, پسند کیا, اپنے شہر میں اور اپنے حبیب کے شہر میں بلا لیا. اس پاک اور مقدس شہر کے اندر بلا لیا جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو روزہ رسول پہ سلام پیش کرتے ہیں, اور پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ اللہ اب ہماری باری پھر کب آئے گی. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب باری تمہاری تا قیامت نہیں آ سکتی. میں اور آپ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں جو وقت, جو گھڑیاں, جو ایام شہر مدینہ میں میسر آئیں گے, ہم ہر گھڑی ہر لمحہ جا کے روزہ رسول پہ سلام پیش کر سکتے ہیں. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. یہ رب تعالیٰ کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے. ایسے بن ہم سب آئے ہیں دیدار کعبہ کے لیے, امت خضرا کی زیارت کے لیے آئے ہیں. ہمیں جو خوف خدا ساتھ لے کے آنا چاہیے تھا وہ خوف خدا ساتھ لے کے نہیں آئے. ہمیں جو روحانیت ساتھ لے کے آنی چاہیے تھی ہم وہ روحانیت ساتھ لے کے نہیں آئے. پہلے جب حاجی حرمین کی نیت کرتا تھا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں یا میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی. کہیں خوف خدا کی وجہ سے, کہیں وہ گناہوں کی طرف دیکھتا اور کہیں شکرانے کے آنسو تھے کہ رب نے مجھے پسند کیا ہے. دور حاضر میں اور صدرات سے میں یہاں دیکھ رہا ہوں حاجی یہاں پہنچتے ہیں ہنستے مسکراتے, سیلفیاں تصویروں کے ساتھ, گلے شکووں کے ساتھ. کیا اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں؟ کیا اس قابل تھے کہ اس زمین کے اوپر قدم لگاتے؟ ہم سے بہتر لوگ وطن عزیز کے اندر ہیں, پرہیزگار لوگ وطن عزیز کے اندر ہیں, لیکن میرے رب نے روح زمین کے اوپر ہزاروں میں سے نہیں, لاکھوں میں سے نہیں, اربوں میں سے اپنے خاص و خاص لوگوں میں شمار کیا, اپنا مہمان ٹھہرایا, اپنے اور اپنے حبیب کے در پہ بلا لیا. تو حاجی یہاں پہنچتے ہیں, سیلفیاں, تصویریں, ہنستے مسکراتے,
हरम तक पहुंचे, तस्वीर के साथ दाखिल हुए। मेहताफ में पहुंचे तो वहां पे भी आप भी देख रहे हैं, वहां पे भी जाके हाथ उठा रहे फकत एक तस्वीर के लिए। अरे तो ये सर के बल चलने का मकाम था, इसकी फजीलत को तूने समझा ही नहीं है। एक काबे से हाथ और दूसरे से सेल्फी ले रहा हूँ, या वो सामने मोबाइल रखा है, मोबाइल के ऊपर दूसरे मोबाइल लेके तस्वीरें बना रहे हैं। आए किस मकसद के लिए थे और इसको किस मकसद के लिए हमने बनाया है। काबे के चक्कर लगाए, सफा मरवा दौड़े, होटल पहुंचे तो सवाल पहले ये हुआ कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है। अयाम कितने हैं, कोई ऐसा एक बंदा भी नहीं हमारे में जिसके पास 1 महीना 20 दिन या 25 दिन शहर मक्का में स्टे के हों। 8 दिन है, किसी के पास 6 दिन है, किसी के पास 5 दिन है। उन दिनों के अंदर भी हम होटल की लॉबी में बैठ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे अपने प्यारों से वीडियो कॉल पे, वॉइस कॉल पे अपने वक्त को बेदर्दी से ज़ाया कर रहे हैं। यही प्यारे एक रोज उस छोटे से घर में छोड़ के वापस लौट के आएंगे, बस सवाब की नीयत से मुट्ठी भर खाक डालेंगे, वापस लौट के आ जाएंगे। इस दुनिया से अगर फानी दुनिया से ये दुनिया धोखा है, इससे अगर कुछ साथ लेके जाएंगे तो ये नेक अमाल है जो रोशनी बन के छोटे से घरों में साथ दाखिल होंगे। हम अपने दुनियावी घरों को तो खूबसूरती से सजाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कलरों से, मुख्तलिफ किस्म की लाइटों से, जहाँ हमारे साथ बच्चे भी हैं, बीवी भी है, बहन भाई भी हैं, लेकिन उस घर के बारे में हम नहीं सोचते जहाँ हमने अकेले जाना है। सच दुनिया में एक कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत के हम मर जाएंगे। कहाँ किस जगह पे इस रूह की गिनती कंप्लीट होगी और ये रूह परवाज कर जाएगी, किसी को इस बात का इल्म नहीं है। बस सच यही है कि जाना है। पूरी दुनिया एक लाइन में खड़ी है, अपने नंबर का इंतजार कर रही है, कहाँ और किस जगह पे उस रूह की गिनती कंप्लीट होगी, वो रूह परवाज कर जाएगी। ऐसे ही एक रोज हमारी भी रूह परवाज कर जाएगी। हमने भी लौट के जाना है, हमेशा लौट के जाना है, उस छोटे से घर में जाना है। अपने दिलों के अंदर खौफ खुदा पैदा कीजिएगा ताकि हमारी आंखें नम हो जाएं। हर एक आंख की बस की बात नहीं है रोना। जिस दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाएगा वो आंख नम हो जाएगी। जब दिल स्याह है तो स्याह दिल से आंसू नहीं निकलेंगे। फिर हंसते मुस्कुराते सेल्फियां तस्वीरों के साथ उस प्यासे की मानद वापस लौट के चले जाएंगे जो प्यासा नहर के किनारे बैठा रहा लेकिन पानी ना पी सका, शाम को प्यासा ही वापस लौट के आ गया। कहीं ऐसा ना हो उस प्यासे की मानद हम भी वापस लौट के चले जाएं। मैं आपको रूह जमीन के ऊपर, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है वहां लेके दाखिल हो रहा हूँ। उस जमीन के टुकड़े की इतनी फजीलत है, इतनी बरकत है। यौमुल अरफा, एक रोज कोई हाजी हज की नीयत से आया और आके उसके अंदर दाखिल हो गया। आईने नमाज मगरिब जब उस मैदान को छोड़ के बाहर निकलता है तो वो इस तरह होता है जैसे एक मासूम बच्चा है गुनाहों से इस कदर पाक हो जाता है। मैदान अराफात में रवाना हूँ। चंद लम्हात के बाद अराफात की मदीन हदूद में दाखिल हो जाऊंगा। अराफा की मानी है जानना पहचानना। जहाँ अम्मा हवा आदम अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे को जाना था, पहचाना था, मैं उस हदूद के अंदर आपको लेके दाखिल हो रहा हूँ। और रवायात में आता है कि जो मैशर का मैदान होगा वो भी मैदान अराफात में लगेगा। और एक रवायत में आता है कि जो मैशर का मैदान होगा वो मुल्क शाम में लगेगा। आज दिसंबर का महीना है, सर्दी का महीना है। जोर के टाइम चंद कदम नंगे पांव कबूतर चौक में चल के देखिएगा, सूरज कहीं 100 मीलों पे है लेकिन उसकी तपिश आज हम यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिरकट कितना सारा है, इतना सारा, उसकी आग अपने पाँव के नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बरोज़ मैशर का मैदान इस अराफात में लगेगा। 50,000 साल का एक दिन होगा। जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा। इस जमीन की तपश का यह आलम होगा कि माँ बेटे से, बेटा माँ से, बहन भाई से, बाप बेटी से भागेगा। एक एक नेकी को इंसान तरसेगा कि हमें कोई एक नेकी दे दे, हमारे बेड़े पार हो जाएं, लेकिन कोई किसी को एक नेकी नहीं देगा। आज इस हदूद हरम के अंदर कोई छोटा सा एक नेक अमल कर लेते हैं, एक पानी का कासा किसी को पिला देते हैं तो 1 लाख नेकियां हमारे नाम अमाल में लिखी जाती हैं। आज नेकियां इकट्ठी करने का मौका है। चंद लम्हात के बाद मैं इस जमीन के ऊपर दाखिल हो जाऊंगा। आज चल के आए हैं
की बार किसी को इस बात का नहीं पता कि फिर अपने कदमों पे आएंगे या उठाया जाएगा यहाँ से। बरोज़ महशर हम सबको इस अराफात के मैदान से उठाया जाएगा। आज सारे सच्ची तौबा कर लें। सच्ची तौबा करने वालों को मेरा रब महबूब बना लेता है। शेख सादी लिखते हैं कि जहाँ पानी बहता है वहाँ सब्जा उगता है, और जिन आंखों में रब की याद में आंसू बहते हैं वहाँ रहमत बरसती है। पत्थर से पानी नहीं आता, पानी मिट्टी से आता है। सख्त दिल से आंसू नहीं आते, जब दिल नरम हो जाएंगे तो फिर आंखों से आंसू आएंगे। हम में से कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो कोई सैर व तफरी के लिए यहाँ पे आया हो, किसी से मिलने के लिए आया हो या शॉपिंग के लिए आया हो। इसमें से किसी एक का भी मेरे ख्याल से मकसद नहीं है। हम सब का मकसद ये है कि हम यहाँ से वापस लौटें तो सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान बन के यहाँ से वापस लौट के चले जाएं। आने का मकसद ये है। अगर आप इस नीयत से आए हैं, इस मकसद से आए हैं, तो इस मकसद को पूरा कीजिएगा। मोमिन ना तो किसी से नफरत कर सकता है, मोमिन की ना तो नमाज छूटती है, ना वो किसी पे जुल्म कर सकता है, ना वो किसी का हक खा सकता है, ना वो किसी से नाराज रह सकता है। ये मोमिन की अलामत है। अगर मोमिन की नीयत से सारे आए हैं तो अपने दिलों को साफ करके इस जमीन के अंदर दाखिल हो जाएं। अपने दिलों से आज नफरतें खत्म करके, आज सच्ची तौबा करके उन सब लोगों को यहाँ से माफ करके जाएं जिन्होंने तकलीफ दी हो, दुख दिया हो, दर्द दिया हो। आज उनको यहाँ से माफ करके वापस लौट के इस अराफात की जमीन में दाखिल हो। फिर जिंदगी में नहीं मालूम कि फिर आ सकेंगे या ना आ सकेंगे या फिर उठाया जाएगा। आज मौका भी है। आज सच्ची तौबा करके सारे हम इस अराफात की जमीन के अंदर दाखिल हों। मैं चंद लम्हात के अंदर इसके अंदर दाखिल हो जाऊंगा। उससे कबल मुख्तसर की सवार सुर का बयान करता हूँ। ऐसे बाद जिस रोड से हम निकले हैं ये शारा हिजरा था, जहाँ पे पुल के नीचे रास्ता बंद था। ये सारा आगे शारा हिजरा था। जिस रोड से हम वापस घूम के आए ये शारा इब्राहिम खलील है। कुफार मक्का ने आपको तंग किया, माज़अल्लाह यहाँ तक कि कत्ल करने का मंसूबा किया। तो रब ताला के हुक्म से जब मक्का से मदीना हिजरत के लिए रवाना हुए, उसी शारा हिजरा से होते हुए जिस पहाड़ की आप ज़ियारत करके आए, गारे सोर जबले सोर का पहाड़ था। जब इसके दामन में पहुंचे तो सदीक अकबर भी साथ थे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो पूछा क्या मामला है, क्या माजरा है, कभी आगे आ जाते हो, कभी पीछे आ जाते हो। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे डर है कहीं कुफार मक्का आगे से हमला ना कर लें, इसलिए आगे जाता हूँ और इसी तरह पीछे आता हूँ। जब देखा कि आप कुछ आहिस्ता 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 चल रहे हैं तो कुर्बान जाऊं सदीक अकबर पे नबूवत के ताज को कंधों पे उठाया, पंजों के बल इस पहाड़ की चोटी पे गए। जब पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, इस गार के अंदर पहले मैं जाऊंगा, गार की सफाई करूंगा, कोई मौजी जानवर कोई कांटे वगैरह तो नहीं है। तो सदीक अकबर गार के अंदर जाते हैं। गार की सफाई की कुछ बिल थे, सुराख थे बंद की, एक सुराख बाकी रह गया, उसके ऊपर पाँव की एड़ी रख दी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, तशरीफ लाए। जब नबी अलैहिस्सलाम गार के अंदर तशरीफ लाए तो गार खुशबुओं से भर गई। एक शाम था जो बरसों आपके दीदार का मुश्ताक था, उसने इस गार के अंदर आके सुराख बना रखे थे। तो उसे पता लग गया कि वो आखिर ज़माना भी इस गार के अंदर आ चुका है। उसने जो सुराख बना रखे थे सुराख की तरफ गया, लेकिन कोई सुराख ना मिला। एक ही सुराख था जिससे इंसानी स्मेल आ रही थी, उसके नीचे आ गया। हल्की सी 2-3 बार आके दस्तक दी, लेकिन पाँव न उठाया। शाम का काम है डसना। उसने सदीक अकबर की एड़ी को हल्का सा डस दिया। दर्द की शिद्दत बढ़ गई, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजूर अलैहिस्सलाम आपकी गोद में सर रख के आराम फरमा रहे थे। वो आंसू जब चेहरा नूर पे पड़े तो आप बेदार हो गए। पूछा किस बात ने मेरे या को रुला दिया। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, किसी मौजी जानवर ने पाँव काट दिया है। दर्द की इतनी शिद्दत है कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया उठाओ पाँव। जो पाँव उठाया तो वह शाम गार के अंदर दाखिल हो गया। अरबी में कलाम करने लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से खिताब कर रहे थे, बार बार आपकी शान बयान कर रहे थे। एक नबी आएगा, इतनी शानों वाला होगा, इतनी शानों वाला होगा, इतनी शानों वाला होगा। तो मैंने रब ताला की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक उस आखिर ज़मान नबी का मैं दीदार ना कर लूँ। आज जब मेरे दीदार का वक्त आया तो आपके यार ने मेरे सारे सुराख बंद कर दिए, सामने दीदार किया, वापस चला गया। यही वो मुकद्दस पहाड़ से जब कुफार मक्का आपको पीछा करते हुए पहाड़ की चोटी पे आ गए, मकड़ी ने जाला बना लिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए। ये देख के कुफार मक्का वापस लौट गए। ये गार तो बरसों से खाली है, इसके अंदर कोई नहीं गया, इसके अंदर कोई गया होता तो ये मकड़ी का जाला टूट जाता, ये कबूतरी के अंडे टूट जाते। ये जबल सुर गारे सुर का पहाड़ था। ये आप आपके राइट हैंड पे देखेंगे, फ्रंट के ऊपर देखें, येलो कलर के बोर्ड हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ अराफात स्टार्ट हियर। ये वकूफ़े अराफात है। हज का जो सबसे बड़ा रुकन है, रुकने आज़म जिसको कहा जाता है, वो ये अराफात का मैदान है। इसके अंदर आके आना, बैठना, क़याम करना, ठहरना हज का सबसे बड़ा
का रुकन रुकने आज़म है। कोई हाजी हज की नीयत से आया, हज की नीयत से इहराम बांधा, उसके लिए ज़रूरी है कि इस हदूद को क्रॉस करके इसके अंदर बैठ जाए। किसी गलती की वजह से भी यहाँ से बाहर रह गया तो उसका हज नहीं होता। हज का रुकन आज़म ये अराफात का मैदान है। कोई हाजी हज की नीयत से आया, यहाँ पे आके किसी हादसे का शिकार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो नाउज़ुबिल्लाह को उसको एम्बुलेंस के जरिए उसे कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए इस अराफात में लाया जाता है। ये हमारी बस अराफात में दाखिल हो चुकी है। रब ताला की बारगाह में सारे ये दुआ करें कि अल्लाह लोगों में हम सबका शुमार हो। हम हालत हराम हज की नीयत से लब्बैक की सदाएं लगाते हुए आगे चलें। अराफात में दाखिल हो, आमीन के सबकी आमीन कबूल हो जाती है। ये आपके राइट और लेफ्ट हैंड पे ये सारे का सारा अराफात मैदान है। ये रेलवे स्टेशन है, मैदान है अराफात का। और ये जो दरख्त नजर आ रहे हैं ये पाकिस्तान की अक्कासी कर रहे हैं। जनरल जौहर हक के दौर में जब हाजी उमर भी आता उनको एक दरख्त इनके नीचे जो मट्टी है वो भी पाकिस्तान की सैर कोट की है। इस वक्त ये मैशर का भी मैदान है, ये हज का भी मैदान है, और ये जमीन के ऊपर ये वाहिद टुकड़ा है जहाँ मेरा रब एक रोज अपने बंदे को पाक कर देता है, सारे के सारे गुनाह माफ फरमा देता है इस मैदान अराफात के अंदर। नाउज़ुबिल्लाह हज को जब हज की नीयत से आते हैं तो इसमें आरजी खेमे लगाए जाते हैं एक दिन के लिए, बाकी सारा साल मैदान यूं ही रहता है। इसकी छोटी सी हदूद है, छोटी गाड़ी है तो 10 से 15 मिनट बंदा घूम के बाहर आ सकता है। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह इसमें इतनी बरकत डाल देते हैं कि 40 से 50 लाख हाजी इस मैदान के अंदर आके बैठ जाते हैं। हाजी कम पड़ते हैं, जगह कम नहीं पड़ती। अब हम जबल रहमत के दामन में पहुंचने वाले हैं। जबल रहमत वो पहाड़ी है जिस पहाड़ी के दामन को रहमत लिल आलमीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कसवा उठने पे बैठ के उम्मत मुसलमान के लिए 5 घंटे दुआ की। और इसी जबल रहमत पे अम्मा हवा आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से निकल जाने के बाद दुनिया पे जो पहले मुलाकात हुई तो वो इस पहाड़ी के ऊपर हुई। तो यहाँ बस खड़ी करेंगे 25 मिनट 5 मिनट इंतजार है, आधा घंटा हम यहाँ बस खड़ी करेंगे। जो पहाड़ी पे जाना चाहे पहाड़ी पे चले जाएं, जो नहीं जा सकते तो वो दामन से होकर अपने लिए हमारे लिए जिसने नहीं कहा पूरी उम्मत मुसलमान के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ फरमाएंगे। आप किस मेहरबान के मेहमान हैं और किस घर के मुसाफिर हैं। आपकी दवाएं रद्द नहीं होती, कदम ब कदम दवाएं कबूल हो रही हैं। तो खुसूसी दवा की दरख्वास्त है, हमारे लिए भी दवा कीजिएगा। और सबसे पहले अपने दिलों को साफ करके जमीन पे कदम लगाएं। आज उन लोगों को माफ करके यहाँ से वापस लौट के जाएं। आज की दौरे हाजिर में बहुत सारे लोग अपने वालिदैन से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से नाराजगी कर बैठे हैं, नाराज होकर बैठे हैं, छोटे छोटे इशू बना के बैठे हैं। सदा हमने यहाँ नहीं रहना, हमने वापस लौट के जाना है। आज उन लोगों से, अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से जिनसे भी आप बस के अंदर 50 बंदे बैठे हैं, आप में से कोई बंदा भी किसी से नाराज है, आज ये अहद करके जाए कि आज से मैं वो नाराजगी खत्म करता हूँ। अना करने वाला शैतान का भाई है और आज से इख्तियार करने वाला अल्लाह और उस हबीब का दोस्त है। यहाँ से वापस लौट के जाएं, आजिज़ी के साथ वापस लौट के जाएं। यहाँ पहुंचे हैं तो आजिज़ी के साथ यहाँ पे रहें, शुक्र अदा करते हुए यहाँ पे रहें। उन लोगों को देख के यहाँ पे रहें जो हमसे बेहतर लोग हैं और पैसे वाले लोग हैं, लेकिन रब ताला ने उनको पसंद नहीं किया। रब ताला ने हमें पसंद किया है, अपने और खास मेहमानों में शुमार किया है, अपने और अपने हबीब के तरफ बुलाया है। तो हम यहाँ पहुंचेंगे तो सच्ची तौबा के साथ इस जमीन के ऊपर कदम लगाएं। 25 मिनट टाइम है, 5 मिनट इंतजार है। यहाँ बस खड़ी करते हैं, नीचे उतर की बस की लोकेशन, बस का नंबर देखेंगे, पीछे से बहुत बसें आ रही हैं। ये एक ही जगह है जहाँ सारी बसें हाजी उतारेंगे, तो हमने भी यहीं पे उतारना है। एक ही रास्ते से आपने अंदर दाखिल होना है, एक ही रास्ते से आपने नीचे लौट के आना है। नीचे उतर के बस की जगह और बस की लोकेशन देखेंगे कि आया हमारी बस कहाँ खड़ी है। फिर जो लोग ऊपर जाना चाहते पहाड़ी पे ऊपर चले जाए, जो नहीं जा सकते, तो ये जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ना, इस रास्ते पे हम यहाँ बस खड़ी करेंगे। जहाँ से अपने अंदर दाखिल होने हैं, हाजी जो अंदर दाखिल हो रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, आपने ना राइट जाना है ना लेफ्ट जाना है, सीधा आना है। ये 510 नंबर स्ट्रीट है, 510 स्ट्रीट नंबर है 510। ये जो रोड है, इसी तरह की उस तरफ भी रोड है, उस तरफ भी रोड है, उस तरफ भी, हर तरफ इसी तरह की रोड है और इसी तरह बसें खड़ी होंगी। जब आप वापस लौट के आएंगे तो वो जो आगे येलो कलर का बोर्ड है वहां तक बसें खड़ी होंगी। तो आप नीचे उतर की बस की लोकेशन और बस का नंबर देखेंगे। तो हम यहाँ बस खड़ी करते हैं। ये सामने मुश्तशबा भी अस्पताल के ऊपर चांद बना हुआ है सामने, और इसके सामने जहाँ से अपने अंदर दाखिल होंगे यहीं से बात निकल के आप सीधा वापस लौट के आना है। सारे इकट्ठे जाएंगे, वापस लौट के तो अपने मोबाइल में मेरा नंबर डायल कर लें।